Now, in this session, we will see about the cytokines. Cytokines are the chemical barrier of the cell. This cytokines has the capability to make the immune cells communicate with each other. So it is a communication barrier, right? So this cytokines are the proteins or cells which has the ability for of the communication between members of any complex network. It is not right. As you can see in this diagram, this GIF, this is a pathway. Cytokinin receptor is there, cytokine is coming, cytokine is giving signal to the cell to get activated. So in short, this is a language which is used by mammalian immune system, right? To work in coordination. So this is usually produced in the cell, and it is used by the immune system to work. Okay, and the major function of the cytokines is to make the communication between two immune cells, right? These cytokines are the language. Now, this what are the characteristics of this protein? It is a small and soluble protein. They have the capacity to bind on their receptor. As you can see in this figure, these are the receptor for the cytokines. The cytokines bound to this receptor, and ultimately it is activating the cell. So this is the character. It initiates the signal transduction pathway. Signal transduction pathway are the kind of mechanisms which is occurred in the cell to activate the cell. कभी भी सेल को अगर एक्टिवेट करना है तो एक पाथवे रन होना चाहिए जिसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बोलते हैं, और वो जो है उसको एक्टिवेट कब हो सकता है? जब साइटोकाइंस जो है वो सिग्नल देता है थ्रू द कम्युनिकेशन. ओके, हियर इज द डेफिनेशन. द साइटोकाइंस, it is any soluble protein or glycoprotein that is released by one cell. कोई एक सेल उसको रिलीज करेगा, and it act as a intracellular mediator or signaling molecule. Here in this diagram you can see this is a cell, right, and this is another cell. So this cell is releasing, this cell is getting infected, so this cell is releasing the signal. This is called as a cytokines. This cytokines will bind to the nearby cell on the receptor which is present on that cell. वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद ये सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वो अपना इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन दिखाना जो है वो चालू करेगा, राइट? तो दिस इज हाउ द सेल इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर सेल, राइट? एक और अगर देखना है तो सेम ये एक सेल है, दिस इज अ स्टिम्युलस सेल. इस स्टिम्युलस सेल ने ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए. वो साइटोकाइंस किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुए दूसरे किसी सेल में, और इस सेल को उसने एक्टिवेट कर दिया ताकि ये एक्टिवेटेड सेल जो है वो आगे जाके अपना फंक्शन जो है वो दिखा सके. तो दिस इज हाउ दिस साइटोकाइंस आर वर्किंग. Cytokines are the communicator between the two cells. Okay, I think the point is clear to you. Now there are different kind of cytokines. First is mononuclear phagocytes, जिनको मोनोकाइंस कहा जाता है. टी लिम्फोसाइट जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको लिम्फोकाइंस कहा जाता है. मीन्स साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस बाय मेनी सेल्स. इफ मोनोन्यूक्लियर phagocytes are producing them, they are called as a monokines. If T lymphocyte are producing there, they are called as a lymphokines. कोई कैमोटैक्सिस या कैमोकाइनेसिस की प्रोसेस में अगर वो साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैमोकाइंस. अगर वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज अ इंटरफेरोन. अगर ल्यूकोसाइट उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कहते हैं इंटरल्यूकिन्स. अगर ग्रोथ या डिफ्रेंशिएशन के लिए बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, तो दे आर कॉल्ड एज अ कॉलोनी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर. देयर आर different kind of cytokines which are produced by different immunological cells or different process of immunological cells. जो सेल उसको प्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से उसका टाइप जो है वो डिफाइन होगा.
जैसे कि मोनोकाइंस मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोकाइंस टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, केमोकाइंस केमोटैक्सिस या केमोकाइनेसिस की प्रोसेस में रिलीज होता है। जब वायरल इन्फेक्शन होगा और सेल अगर कोई केमिकल सिग्नल रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस, दे आर कॉल्ड एज इंटरफेरोन। वैसे ही इंटरल्यूकिन होता है एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। ओके, सो ये अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस है बेस्ड ऑन कौन से सेल में से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, अभी वो कहाँ पे जाके एक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अगर साइटोकाइंस की बात करनी हो तो वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज ऑटोकाइन, सेकेंड इज पैराकाइन एंड थर्ड वन इज एंडोक्राइन। ऑटोकाइन क्या है वो देखते हैं। ऑटोकाइंस ऐसे साइटोकाइनिन है कि जो सेल, जैसे कि ये एक्स करके सेल है, उसने ऑटोकाइन प्रोड्यूस किए, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइटोकाइनिन, राइट। अभी ये जो ऑटोकाइन प्रोड्यूस है वो ही सेल के ऊपर जाके बाइंड हो जाएंगे, वहाँ पे कोई रिसेप्टर होंगे उसके ऊपर, और फिर वो सेल को एक्टिवेट करेंगे। मीन्स सेल खुद को ही एक्टिवेट करने के लिए साइटोकाइन रिलीज कर रहा है, वो साइटोकाइन वही सेल के ऊपर बाइंड हो रहा है एंड वही सेल को एक्टिवेट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोक्राइन मैकेनिज्म। गेटिंग द पॉइंट। सेकेंड इज पैराक्राइन मैकेनिज्म। In paracrine mechanism what happen, this is a X cell. This cell has produced this cytokines. This cytokine is going to the nearby cell, bind to the receptor of this nearby cell and activating the nearby cell. This kind of cytokines are called as a paracrine action, right? अगर कोई साइटोकाइन किसी एक सेल के साथ एक सेल में से प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो प्रोड्यूस होके कहीं पे दूर के एकदम डिस्टेंस सेल के जाके एक्टिवेट करते हैं सर्कुलेशन के थ्रू, राइट। यहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए बाय एक्स सेल, वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर हुए और सर्कुलेट होते होते कहीं पे दूर एक सेल था उसको जाके उसने एक्टिवेट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोक्राइन एक्शन। सो बेस्ड ऑन द एक्शन कि वो खुद को एक्टिवेट कर रहा है, नियर बाई सेल को एक्टिवेट कर रहा है या दूर के सेल को एक्टिवेट कर रहा है, इस हिसाब से साइटोकाइंस के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑटोक्राइन, दूसरा होता है पैराक्राइन एंड तीसरा होता है एंडोक्राइन। These are some other examples from the Prescott book regarding the cytokines. Right? This is about cytokines that you need to understand. Let's have a quick revision, short revision of cytokines. What is cytokines? These are the communicating protein which are produced by immune cell and it is a communication language. एक दूसरे सेल को एक्टिवेट करने के लिए साइटोकाइंस जनरली प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सेल्स के थ्रू, राइट। What are the characteristics? They are small protein, they will bind to certain receptors and उसका फंक्शन ये होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करना। What is other point? साइटोकाइंस जो है, दिस इज द साइटोकाइंस जो प्रोड्यूस हुए हैं एक सेल से, वो दूसरे सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं। साइटोकाइंस अलग अलग सेल प्रोड्यूस करते हैं। अगर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा मोनोकाइंस। अगर टी लिम्फोसाइट उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कहा जाएगा लिम्फोकाइंस। अगर केमोटैक्सिस या केमोकाइनेसिस प्रोसेस में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कहा जाएगा केमोकाइनेसिस। वायरल इन्फेक्शन में अगर वो प्रोड्यूस हो रहे थे तो उसको कहते हैं इंटरफेरोन, सेम इंटरल्यूकिन एंड कॉलोनिमिस्ट इम्यूनिटी फैक्टर। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोड्यूसर सेल इतने टाइप के साइटोकाइंस होते हैं। हाँ, अभी वो कहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से 3 टाइप है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। अगर वो सेल खुद के ही ऊपर एक्ट कर रहा है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवा के खुद को ही एक्टिव कर रहा है, उसको कहा जाएगा ऑटोक्राइन। अगर एक सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है और किसी नियर बाई सेल को एक्टिवेट कर रहा है उसको कहा जाएगा पैराक्राइन, राइट। और अगर कोई एक सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है और दूर कहीं पे कोई एक सेल है जिसको उसको एक्टिवेट करना है तो जो सर्कुलेशन जाके वो उसको एक्टिवेट करेगा तो उसको कहा जाएगा एंडोक्राइन। So based on the way of functioning, these 3 type of cytokines are there. Okay. These are few other examples of the cytokines. In short, you should remember कि whenever immunological response देना है तो अकेला इम्यून सेल कुछ नहीं कर सकता, उस सेल को एक दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करके पूरी टीम वर्क में काम करना रहता है।
सो वो कम्युनिकेट करने के लिए एक सेल को दूसरे सेल को सिग्नल देना पड़ेगा कि नाउ इट इज योर टाइम टू बी टू गेट द कम्युनिकेशन। तो वो जो सिग्नल है इन बायोलॉजिकल एंटाइटी इट इज अचीव्ड थ्रू द साइटोकाइंस। अगर आपने रिले रेस देखी हो तो रिले रेस में 6 या 7 रनर दौड़ते हैं। पहला 100 मीटर एक रनर दौड़ता है, फिर वो रिले दूसरे रनर को दे देता है, फिर दूसरा दौड़ता है, फिर वो तीसरे रनर को दे देता है। तो ऐसे करके वो लोग रेस कंप्लीट करते हैं। तो इन अ सेम वे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स ऑल्सो, एक सेल एक्टिवेट होकर अपना काम करके दूसरे सेल को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को करता है। तो वो जो एक्टिवेशन करने का जो सिग्नल है वो दिया जाता है थ्रू वन केमिकल, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज अ साइटोकाइन। क्लियर?